کراچی میں وزیر خزانہ اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایک ٹیم اپنی جو ہے اگلے ہفتے منگل بدھ کو بھیج دیں اسلام آباد. میں حماد کے ساتھ اور ایف بی آئی والوں کے ساتھ بٹھا دوں گا. اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلے فوری طور پہ کرنے چاہیے، یہ فیصلے فوری طور پر نہیں کرنے چاہیے. اور بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنے، اس لیے نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں، اگر بغیر کسی چیک اور بیلنس کے حکومت کے پاس اختیار ہو کام کرنے کا، تو وہ اختیار یقین جانیے وہ زیادہ اختیار اپنے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہوگا. تو کوئی چیک اور بیلنس ہو. اور یہ ایک اچھی چیز چینج کی گئی ہے کہ اگر آپ ٹیکسیشن کے اندر کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیکسیشن کے اندر جو تبدیلی ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس کر جائیں، وہاں پر ایک ڈیبیٹ ہو اور وہاں سے اپروول ہو. تو اس لیے وہ 23 تاریخ کی بات کر رہے ہیں. ورنہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک سٹروک آف دا پین سے ایسا روز بدل کے کیا 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 گیا ہے پہلے. اور میرے خیال میں وہ ایک اچھا نظام نہیں. تھوڑا سا تو اس میں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ لانگ ٹرم میں ایک بہتری کا طریقہ ہے. لیکن میں ان میں سے جو چند چیزیں آپ نے کی ہیں ان کے اوپر ضرور کامنٹ کروں گا. میں زیادہ جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ 3-4-5 چیزیں ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ آفیشل کیپیسٹی میں کراچی چیمبر آیا ہوں. آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ 3-4-5 بڑی چیزیں ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ آفیشل کیپیسٹی میں کراچی چیمبر آیا ہوں. سراج بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں چیمبر آئے ہیں کہ گھر آئے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ایک کیوں نہیں ہو سکتی کہ چیمبر آئے ہوں اور گھر آئے ہوں. ٹھیک ہے نا. میں کراچی چیمبر کا ممبر رہ چکا ہوں جناب. آپ نے اب ڈسون کر دیا تو اور بات ہے، میں اس چیمبر کا ممبر رہ چکا ہوں. تو میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے کچھ گفتگو آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اکانومی کا ویژن ہے وہ ہے کیا، اس ویژن کے اندر آپ کا کردار کیا ہے، اور ہم کس طرف آگے جانا چاہتے ہیں. وہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ جو چیزیں ہیں جس طرح لیکوڈیٹی ہے، گیس سپلائی ہے، جی آئی ڈی سی ہے، میں اس کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا. لیکن پہلے ذرا سی جیسے میں نے کہا تھوڑی سی بڑی پکچر پہ بات کر لیں، پھر تھوڑا سا ایک مجموعی طور پہ جو معیشت کی صورتحال ہے ابھی اس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا، اور پھر ان چیزوں کی بات کروں گا. ہمارا ویژن ہے کیا جی، ہمارے چاہتے کیا ہیں، کیا ہماری ترجیحات ہیں. کیونکہ جو آپ کی جو ترجیح ہوتی ہے پھر اسی کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وسائل جو ہے ان کی تقسیم کی جاتی ہے، انہی چیزوں کے اوپر حکومت اپنا ٹائم لگاتی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ ایک سگنل جاتا ہے بزنس کمیونٹی کے پاس بھی کہ کیا چیز ہے جس کے اوپر مجھے کام کرنا چاہیے، کہ کہاں پہ مجھے آگے نظر آتا ہے، بہتری نظر آتی ہے. ایک تو چیز بالکل کلیئر ہو جی کہ 21ویں صدی کے اندر معیشت کا پہیہ جو ہے وہ نجی شعبہ چلاتا ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر چلاتا ہے، وہ پرائیویٹ انویسٹر چلاتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ ایسا ماحول نہیں، سب سے پہلا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے اگر آپ یہ پریزنٹیشن بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں سے آدھی سے زیادہ چیزیں جو ہیں آپ کو اسی کے اندر نظر آئیں گی کہ کاروبار کرنے کے لیے مشکل پیدا کی ہے. ایک تو مہنگا، آپ ٹیکس لگاتے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں، ظاہر ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آدھی سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس طریقے سے وہ آپ ٹیکس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو شاید نہیں، تقریباً یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی سیاسی پارٹی تھی جس نے الیکشن لڑا، اور اس الیکشن کے منشور کے اندر یہ لکھا کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگ جو اس وقت 147 تھی اب 136 ہے، اس میں 100 سے بہتری میں جانا چاہتے ہیں. اور وہ صرف وہاں پر لکھا نہیں گیا، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ماہانہ میٹنگ ہوتی ہیں، وزیر اعظم خود اس کو ذاتی طور پر چیئر کرتے ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور ان کا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سیل ہاؤس کے اندر سیٹ اپ کیا جا رہا ہے، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. اور جب بھی معیشت کی بات آتی ہے، جیسے آپ نے کہا 52% زبیر بھائی ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے، جو بھی اس کو لیڈ کرتے ہیں. اور جب بھی معیشت کی بات آتی ہے، جیسے آپ نے کہا 52% زبیر بھائی ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے،
जो भी आप चीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग देख लें, वो आधा से ज्यादा कराची है। कराची दिल है मईशत का पाकिस्तान की। और इसलिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अभी कराची आए भी थे, सिंध की हुकूमत के साथ भी बैठे। आपको कुछ चीजें जो हैं वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगी, आसानी पैदा करने के लिए जो आपके लिए हम इकदाम कर रहे हैं। और कई और फैसले जो हैं जिसमें फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी, वो आपको मेरे ख्याल में जनवरी के आखिर तक अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। और ये एक इब्तिदा है, ये हमने साथ मिलके इसको मजीद से मजीद आसानियां पैदा करते चले जाना है। और ये जाहिर है आपके बगैर, आप ही की तो कारोबार है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि इसके अंदर आसानी कैसे पैदा की जाए। सो एक तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत तरजीह दी जा रही है। दूसरा, सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी, सरमायाकारी होगी तो नौकरियां पैदा होंगी, सरमायाकारी होगी तो आगे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, मेरी तमाम वो जो तरजीहात हैं हुकूमत की वो पैदा होनी है। तो हमने इस वक्त मईशत हमारी जरा से समझने की जरूरत यह है कि हमने जो माशी पॉलिसी जिसके ऊपर हम काम करते रहे हैं पिछले तकरीबन 3 दहाई में ज्यादातर अरसा, कुछ साल में अगर छोड़ दूं, ज्यादातर अरसा पिछले 30 साल में जो हम कर रहे हैं, हमने एक मईशत बना दी है जो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। नतीजा क्या निकला है? सेविंग्स आपकी शायद दुनिया की सबसे कम हो चुकी हैं, और इन्वेस्टमेंट के जो रेट्स हैं आपके, वो पाकिस्तान में जो तारीखी तौर पे होता था उससे भी बहुत कम हो चुके हैं, और दुनिया से तो बहुत ही पीछे हो चुके हैं। सरमायाकारी हो नहीं रही है, कंजम्पशन हो रही है। तो जब कंजम्पशन होगी और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? फिर आपका बाहर से कैपिटल जो है इंपोर्टेड कैपिटल से फाइनेंस करेंगे, और शक्ल क्या इख्तियार करेगा? तजारती खसारे की शक्ल में आएगा सामने। और इसीलिए पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो पिछले साल बढ़कर एक खतरनाक हद तक तजावुज कर चुका, जिसकी वजह से तमाम ये भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमने कंजम्पशन को इंसेंटिवाइज नहीं करना, और जो इंपोर्टेड कंजम्पशन है उसको तो हमने बाकायदा तौर पे पॉलिसी से टारगेट करके उसमें उसको कंट्रोल करना है, और सरमायाकारी पे इंसेंटिव्स डालने। तो आपको दूसरी चीज जो नजर आएगी, जो 23 तारीख की आपको जो फाइनेंस बिल आपको नजर आएगा, उसके अंदर आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मेजर्स नजर आएंगे, दूसरी सरमायाकारी के आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे, क्योंकि हमने सरमायाकारी और सेविंग्स दोनों को बढ़ाना है। साथ ही साथ, और ये हमें हमारे लिए एक फख्र की बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है जहां साहिब सरबत लोग जो हैं, सारे पाकिस्तान में ही, लेकिन क्योंकि मैं कराची को बाकी पाकिस्तान से बेहतर जानता हूं, तो यहां तो शायद कराची जैसा तो कहीं भी ना हो। साहिब सरबत लोग उन लोगों का जो मुश्किल में हैं, जिनके पास उतने वसाइल नहीं है, उनका ख्याल रखते हैं। इसी तरीके से जहां इंफरादी तौर पर यह आप लोग सब काविश करते हैं, ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि ऐसी मईशत की पॉलिसी लाए कि जिसके अंदर जो कमजोर तरीन तबका है उसकी दाद रसाई की जाए, उसके लिए मुश्किलात कम की जाए। हमने पिछले 5 माह के अंदर जितने भी फैसले किए हैं, उसमें तमाम में आपको इसकी झलक नजर आएगी, चाहे वो बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, टैक्स का निजाम हो। जितने भी फैसले किए हैं उसमें कोशिश ये की है कि ये साहिब सरबत लोग जो हैं, जिनमें इस्तिताअत है, वो बोझ उठा सकते हैं, और अगर मुश्किल वक्त है तो बोझ उनके ऊपर डाला जाए, उनके ऊपर ना डाला जाए जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा मुश्किल के अंदर हैं। और उमूमी तौर पे हमें बिजनेस कम्युनिटी से भी इसके अंदर बहुत मदद मिली है। वजीर आजम का जो पनागाह का जो एक आइडिया था, लोग बेचारे
हमारी बातचीत हुई और उसके अंदर एक मैंने तजवीज दी थी कि क्योंकि पाकिस्तान तुर्की, आप में से जो भी तुर्की गया हुआ है, आपने भी महसूस किया होगा कि जैसा अवामी सतह के ऊपर तुर्की के अंदर पाकिस्तान के साथ खैर सगाली का जज्बा है, शायद दुनिया में बहुत मुश्किल से आपको ऐसा मिले। लेकिन हमारी बामी तजारत ना होने के बराबर है, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लेवल के ऊपर है। तो मैंने उनको कहा, बात ये हो रही थी कि वो टर्किश बिजनेस डेलीगेशन यहां पर लेके आएंगे और फिर हम यहां से बिजनेस डेलीगेशन वहां पर लेके जाएं। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए हमें, लेकिन अगर आप वाकई में पाकिस्तान की और तुर्की की जो माशी जो रिश्ता है उसको वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा हमारा सियासी रिश्ता है, तो फिर ये टॉप लेवल से एक बाकायदा मरबूत प्लान बनाए बगैर नहीं होगा। और उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया जी, इस टर्की और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर काम होना है। कल वो नोटिफिकेशन भी कर दी वजीर आजम ने, एक बड़ी पावरफुल, उसमें 6 या 7 वजीर शामिल हैं, मुझे उसका कन्वीनर लगाया गया है और हमारी फरवरी के महीने के अंदर अंदर हमने, और आप जाहिर बिजनेस कम्युनिटी से भी हम उसकी सिफारिशात लेंगे, इनपुट्स लेकर हमने सिफारिशात मुरतब कर रहे हैं। वहां पे तुर्की वाले जो हैं वो अपनी तरफ से सिफारिशात मुरतब करेंगे और अप्रैल के अंदर हम उसको इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान और सदर अर्दोआन जो हैं वो साइन कर देंगे, ताकि आपके लिए मौके पैदा किए जाएं, सरमायाकारी के लिए भी, तजारत के लिए भी। और जाहिर है बीच में ईरान आता है, ईरान के साथ भी हमें ये करना है, अफगानिस्तान के साथ हम पहले कह चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के साथ भी ऐसे ताल्लुकात हों जो एक खित्ते के अंदर लोग जो साथ रहते हैं उनके होने चाहिए। हमारा अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायदे आज़म ने उसके लिए लीडरशिप फराम की, पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे बड़े सगीर के मुसलमानों ने उसके लिए जद्दोजहद की। और कराची में तो ज्यादातर वो लोग बस रहे हैं जिनके माँ बाप ने उस जद्दोजहद का हिस्सा बने और वो पाकिस्तान उन्होंने बनाया। लेकिन पाकिस्तान के लीडर का ख्वाब क्या था? पाकिस्तान के लीडर का ख्वाब ये तो नहीं था दुश्मनी, कायदे आजम का विजन तो था पीस विद इन एंड पीस विदाउट। हम मुल्क के अंदर भी अमन हो और खित्ते के अंदर भी अमन हो, और हम भी वही चाहते हैं। इसीलिए वजीर आजम इमरान खान ने जो पहली तकरीर की वजीर आजम बनने के बाद, उस तकरीर के अंदर उन्होंने भारत की तरफ भी एक हाथ बढ़ाया कि आए, हमारे जो बाहमी मसाइल हैं, और जाहिर कश्मीर उसमें सबसे बड़ा मसला है, सबकी बात करें और तिजारत की भी बात करते हैं। मैं आपको यह बताऊं, बड़ी अफसोस की बात है कि भारत की हुकूमत ने उसका मज़बूत जवाब नहीं दिया। शायद उनकी अंदरूनी सियासत की ये मजबूरियां हैं, खासतौर पे उनका इलेक्शन आने वाला है। हमारी अभी भी उम्मीद ये है कि इलेक्शन के बाद भारत जो है वो शायद जो हमने हाथ बढ़ाया था एक बातचीत करने का, एक बाहमी जो इज्जत और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए आजाद मुल्कों के दरमियान, उस बुनियाद के ऊपर, और जो भी हमारे मसाइल है, और मैं फिर कहूंगा खासतौर पे कश्मीर का मसला है, उसके ऊपर बातचीत करने का और आपस में तजारत को बढ़ाने का, इसके ऊपर वो बातचीत करेंगे। पाकिस्तान जो है इस आइडिया के लिए तैयार है। मैं आपको यह भी बताऊं कि बहुत अक्सर हलकों के अंदर यह चेमगोई होती है, लोगों का ख्याल यह कि यह इसलिए नहीं होता, और यह भारत ये कहानी बार बार पीटता है और दुनिया को सुनाता है कि जी ये असल में इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की फौज इसकी मुखालफत करती है। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज इस सोच के साथ मुताबिकत रखती है, पाकिस्तान आर्मी चीफ इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अपने तमाम मामलात जो हैं उनको मिल बैठकर बातचीत के जरिए हल करे। तमाम मसाइल को हल करने के साथ हमारे आपस में जो मामलात हैं, खास तौर पे तिजारत के मामलात जो है, मईशत के मामलात जो है, उनको भी बढ़ाया जाए। इसमें भारत का भी फायदा होगा, इसमें पाकिस्तान का भी फायदा होगा। इस पूरी ब्रॉडर उसके ऊपर बात करूं, हमने जिस वक्त लिखा अपना मईशत का मैनिफेस्टो हम लिख रहे थे, तो हमने, और साथ ही हम खारजा पॉलिसी लिख रहे थे, तो खारजा पॉलिसी के अंदर हमने लिखा कि मईशत को एक बुनियादी रुकन बनाएंगे हम अपनी खारजा पॉलिसी का, और हुकूमत बनने के फौरी बाद एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर साथ मिलकर काम करने के लिए वजीर खारजा, वजीर खजाना यानी मैं, और जो वजीर आजम के मुशीर है
कॉमर्स के और इंडस्ट्री के, शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं और रज़ाक दाऊद, हम तीनों साथ बैठे और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फॉरेन ऑफिस और हमारी कोऑर्डिनेशन है। और एक बड़ा लैंडमार्क मेरे ख्याल में दो चीजें हुई हैं फॉरेन ऑफिस में, मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी लीडरशिप में दो काम किए हैं। एक तो तमाम पाकिस्तान के जो अहम ममालिक में सफीर हैं इस वक्त, उनको बुलाया गया, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई और वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर। किस तरीके से तजारत को हमने फरोग देना है, सरमायाकारी को फरोग देना है, और हमारी जो फॉरेन ऑफिस है और जो हमारी एम्बेसीज हैं बाहर, उन्होंने क्या किरदार अदा करना है। और अभी उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी एडवाइजरी काउंसिल बनाई है और उस फॉरेन पॉलिसी एडवाइजरी काउंसिल के अंदर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और एडवाइजर ऑन कॉमर्स भी शामिल है। तो यानी एक आपको नजर आ रहा है कि ये एक हुकूमत है जो समझती है कि मैंने अगर अपने मुल्क के अवाम की जो करोड़ों लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर मैंने इनकी जिंदगी बेहतर करनी है तो इनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए मुझे तजारत को फरोग देना है, मुझे सरमायाकारी को फरोग देना है, और हर काम जो मैं करूं बशमूल में खारजा पॉलिसी जो बनाऊं उसके अंदर मैंने इस चीज को तरजीह बुनियाद देनी है इंशाअल्लाह ताला। और अभी तक आप इसके रिजल्ट्स देखते भी आए हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके की बायलैटरल सपोर्ट, बामी हमें जो सपोर्ट मिली है दोस्त ममालिक के से पिछले 5 माह के अंदर, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और वो इसलिए कि जिस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप वहां बैठ रही है वो बात ही सबसे ज्यादा पहले करती है मईशत के मामलात की। आपको अभी जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है जो फौरी इमदाद की चीजें आई हैं, जो फाइनेंशियल पेड है, डिपॉजिट्स आए हैं, उनकी बात हो रही है। अगला स्टेप बहुत जल्द, आज भी मैं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया के जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं खालिद अल फाली, दुनिया के सबसे पावरफुल एनर्जी मिनिस्टर हैं, वो आज भी पाकिस्तान आए हुए हैं। आज भी उनकी मुलाकात हो रही है चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान के साथ, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। और आप जल्द जो है वो अगला स्टेप देखना शुरू कर देंगे, और वो क्या है, सरमायाकारी की ऐलानात आप देखना शुरू कर देंगे। और उसी के साथ साथ इस महीने के आखिर तक या अगले महीने के शुरू में जो हम ट्रेड की नेगोशिएशन करते रहे, उसके असरात आप एक्सपोर्ट्स देखना शुरू कर देंगे जो इसी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ लिंक्ड है। सो ये सिर्फ डिपॉजिट्स या कर्जे की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है, ट्रेड की भी बात हो रही है। तो मैंने कहा ये एक अच्छा मौका है, पाकिस्तान के सबसे बड़े माशी शहर के सबसे बड़े चेंबर के अंदर मैं आया हुआ हूं, तो आपके साथ थोड़ा सा ये भी शेयर करूं कि बड़े लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। अब मैं आता हूं जी 2-3 चीजें जो आपने बात की थी, बड़ी चीजें। गैस सप्लाई, देखिए गैस सप्लाई ये जो हो रहा है ना सिराज भाई, जुबैर भाई, ये प्लान से नहीं हो रहा। इंप्लीमेंटेशन के अंदर गलतियां की गई हैं, हमारे ख्याल में वो गलतियां जो है वो बिल्कुल अवॉइडेबल थी और इसीलिए एक्शंस लिए गए। आपने देखा है उसको। प्लानिंग साइकिल जो है उसको हम बदल रहे हैं। हमारी तो ये 2 महीने आगे की इंटीग्रेटेड प्लानिंग साइकिल हमें नहीं नजर आता था। आप देखें इस वक्त मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं प्लानिंग के फुकदान की, कि हम नए पावर प्लांट्स लगा रहे थे। वो पावर प्लांट्स इंपोर्टेड एलएनजी पे थे, डोमेस्टिक कोल के ऊपर थे, इंपोर्टेड कोल के ऊपर थे। बाय डिजाइन हम ये कोशिश कर रहे थे कि फर्नेस ऑयल जो है, क्योंकि उससे महंगी बिजली पैदा होती है, तो फर्नेस ऑयल के ऊपर पावर जनरेशन खत्म की जाए। अब पावर प्लांट लगाने में जुबैर भाई आपको पता है 4 साल लगते हैं यार। ये ऐसा तो नहीं होता एक दिन सुबह उठे तो पावर प्लांट लगा हुआ था। 4 साल में वो प्लानिंग किधर थी कि अच्छा ये फर्नेस ऑयल अगर पावर जनरेशन के अंदर नहीं इस्तेमाल होगा तो ये जो रिफाइनरियां फर्नेस ऑयल बना रही है जाएगा किधर? ना एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, ना डीप कन्वर्जन। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करें। उनका ये कहना है कि 21वीं सदी में जो प्राइवेट सेक्टर है वो इकोनॉमी को रन करेगा। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का।